Hello everyone. So in this article, let us discuss. This is a very interesting article, and this article is about the entirety of the office of the governor. कि governor की powers क्या हैं and this post of the governor, what is it all about? So this article is very important from polity perspective and from the perspective of PSIR का जो पूरा perspective है उससे बहुत ही अच्छा और important है ये article. So let us understand कि आर्टिकल में लिखा क्या है. The constitutional debates on the role of governor and how the position has fared in center-state relations. Okay, because आपको समझ में आना चाहिए कि गवर्नर आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, बहुत स्टेट से गवर्नर न्यूज़ में है, स्पेशली द गवर्नर ऑफ मेघालय. एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ मेघालय. ऑल राइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या बोला है इस आर्टिकल में. The makers of the Constitution of India did not anticipate the office of the governor meant to preserve, protect, and defend the Constitution and the law would metamorphose into the most controversial constitutional office, rendering the constitutional praxis rugged. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इनको द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, हमारी असेंबली को ही नहीं पता था कि एक इतना कंट्रोवर्शियल ऑफिस बन जाएगा द ऑफिस ऑफ गवर्नर. नाउ इसमें स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से गवर्नर की पोस्ट एंड पोजीशन स्टार्ट हुई थी. ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ईदर द डायरेक्ट इलेक्शन, या तो वो डायरेक्ट इलेक्शन से बनने थे या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर होना था. बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने एक थर्ड ऑल्टरनेटिव ही चूज़ किया जिसके अंदर था ओपिनियन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट. मतलब तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट से होगा ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो अभी चल रहा है, सो एज टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन विद द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव. तो दिस वॉज वॉट द इनिशियली मेंट एंड इनिशियली थॉट. तो आर्टिकल 131 जो था, दो अब आर्टिकल 155 जो बन चुका है ऑफ द ड्राफ्ट विच वॉज टू बिकम आर्टिकल 155. आर्टिकल 131 कहता था प्रोवाइडेड कि an elected governor or a governor appointed by the president from a panel of 4 candidates elected by the legislative assembly. उसके बाद जब डेलिब्रेशंस हुई इस बात पे बहुत सोच विचार हुआ तो असेंबली ने वोट किया एक नॉमिनेशन प्रोविजन में जिसके अंदर विच रूल्स आउट एनी रोल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब अब लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं बचा था एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज कंसर्न्ड. Jawaharlal Nehru strongly supported nominated governor as an elected governor may lead to conflict and waste of energy and money, and also leading to certain disruptive tendency in the big context of an elective governor plus parliamentary system of democracy. तो बेसिकली अब ये लोग आ गए थे एक नॉमिनेटेड गवर्नर पे rather than एक elected governor पे. तो finally the process by which governor is nominated by the president on the advice of council of ministers was adopted and it became article 155. So article 155 of the enacted constitution, when elected governor of United States was juxtaposed with the nominated governor of Canada and Australia, democratic propriety demanded nomination despite the suspicious reluctance towards the parent law, the Government of India Act 1935, which conceived the nomination system. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो चाहता है कि एक गवर्नर का नॉमिनेशन होना चाहिए, जबकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि गवर्नमेंट को नॉमिनेट किया, गवर्नर को नॉमिनेट करना जाना चाहिए. यूनाइटेड स्टेट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नर है वो इलेक्ट किया जाता है. फिर उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर कैटेगोरिकली स्टेटेड ऑन द फ्लोर दैट द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो फंक्शंस which he can discharge by himself, no functions at all. While he has no functions, he has certain duties to perform. उसके बाद गवर्नर, what the constitution conceived was a duty bound governor, a constitutional prophecy that failed to work after the fourth general election of 1967, as Congress had to bid farewell to their power in 8 states while retaining power at the union, gradually resulting in a tug of war between central assertion and constitutional autonomy.
तो बेसिकली आफ्टर 1967 जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुई गवर्नर की पोस्ट में, बिकॉज अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों हुआ ऐसा। एक हम एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें, जो बॉमाई वर्डिक्ट है, तो राजभवन और जो गवर्नर का ऑफिस है वो कैसे इन्वॉल्व हो गया पूरी पॉलिटिक्स में, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो डीएमके की सरकार थी तमिलनाडु के अंदर, बिगिनिंग फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो जब नेशनल इमरजेंसी शुरू हुई जून 25 1975 को, तो जो गवर्नर थे तमिलनाडु के, a report was sent to the then governor KK Shah seeking dismissal of DMK government for pervasive corruption, and therefore president rule was imposed on 3rd February 1976। तो जो ऑपोजिशन थी उन्होंने गवर्नर को डिसमिस करने को बोला गवर्नमेंट, एंड जो गवर्नर थे उन्होंने डिसमिस कर दी गवर्नमेंट, और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया तमिलनाडु में फरवरी 3 1976 को। द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन स्टेट्स ओवर 100 टाइम्स प्रायर टू 1994। तो मतलब 1994 से 100 टाइम्स से ज़्यादा गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लग चुका था। बट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ द SR बोमाई केस, तो इस केस के बाद सच रैम्पेंट प्रैक्टिसेस केम टू एन एंड एज द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल शैल बी कन्फाइंड। मतलब जो प्रेसिडेंट रूल है वो कन्फाइंड होगा सिर्फ तभी जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है। सिर्फ उन्हीं केसेस में गवर्नर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी के टॉपिक्स में भी आएगा ये, एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ द गवर्नर, एंड देन फाइनली जो प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन कब होगा, किस स्टेट में ऐसा कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई, तब लगाई जाएगी। इट इज़ अगेन ऑन द वर्डिक्ट, इट इज़ अगेन ऑन द ओनर्स ऑफ द गवर्नर कि कब उनको नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। The SR Bommai judgment passed by the 9 judge bench Supreme Court extensively quoted from the commission on, तो जो कमीशन था, सरकारिया कमीशन था, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर ये कमीशन था। सेंटर स्टेट रिलेशंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1983 का ये कमीशन है, और इसको हेड कर रहे थे जस्टिस RS सरकारिया। एंड ये अभी तक का जो है वो हमारा बेडरॉक है किसी भी इंक्वायरी में। अगर हमें सेंट्रल स्टेट के बीच में कुछ भी डिस्कशन डिबेट होता है, तो उस केस में ये जो है यही हमारा बेडरॉक रहता है, मतलब हम इसी से सारी चीज़ें डिराइव करते हैं। और ये कमीशन बात करती है री इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, द सरकारिया कमीशन sought to restore dignity of the Raj Bhavan by focusing more on appointee who shall be an eminent person in some walk of life, someone outside the respective state, so that he would not have any personal interest to protect। तो इनका बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन था सरकारिया कमीशन का, वो ये था कि जो गवर्नर की पोजीशन है वो सबसे पहले तो एक ऐसे एमिनेंट पर्सन को मिलनी चाहिए जो किसी वॉक ऑफ लाइफ में मतलब बहुत ही सक्सेसफुल रह चुका हो। दूसरी चीज़, वो बाहर का होना चाहिए, मतलब वो स्टेट का नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी उसका पर्सनल इंटरेस्ट उस स्टेट के अंदर ना हो। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप आज भी गवर्नर की पोस्ट देखेंगे, तो जो हरियाणा के गवर्नर हैं या मेघालय के गवर्नर हैं, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं, इन सारे स्टेट्स के गवर्नर्स जो हैं, इनमें कोई भी वेस्टेड पर्सनल इंटरेस्ट नहीं मतलब आपको मिलेगा। एक्चुअली में ऊपर ऊपर से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। अगेन जैसे पौंडीचेरी के भी अगर गवर्नर को देखेंगे आप, तो दिस नथिंग, नो कॉमन थ्रेड बिटवीन द स्टेट दैट दे आर गवर्निंग एंड उनके पर्सनल टाइज में। So that is something that is very important for the position of governor. Now, better to have a detached figure as governor who has not been recently active in politics। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि एक डिटैच्ड फिगर होना चाहिए गवर्नर का जो रिसेंटली एक्टिव ना हो पॉलिटिक्स में। For a while batting for a secure term for the governor, the commission condemned the practice of governors venturing in further into active politics, as well as ascending to the offices after completion of the term, all of which contaminate the purity of the gubernatorial intent। बेसिकली ये कह रहे हैं कि
जो गवर्नर है उनको बाद में भी जो है कोई भी जो सरकारी पोस्ट है या गवर्नमेंट की पोस्ट है वो नहीं मिलनी चाहिए, या फिर उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए, एंड कोई ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए गवर्नमेंट का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो या कोई भी ऑफिस हो, बिकॉज फिर वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, एंड फिर वो, क्योंकि उनको पहले ऐसी डील मिल चुकी होती है, दैट इज़ वाई उन्होंने कोई दे मस्ट हैव पास समथिंग, दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग दिस डील। तो ऐसा भी माना जा सकता है, देर इज सम फाउल प्ले इन दिस। सो ये इन्होंने सजेस्ट किया था। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि गवर्नर का जो रूल है वो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है कि ये डिज़ायरेबल है कि हम दैट इट इज डिसाइरेबल टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर, दो इट शैल बी लेफ्ट टू द गवर्नर टू एक्ट ऑन द सेम और नॉट। जैसे अगर हम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी देखें, उनके जो हेड हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं। सो दैट इज़ वाई जो चांसलर होता है, चांसलर गवर्नर की एक और पोस्ट होती है कि वो चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के। अब सरकारिया कमीशन ने ये भी कहा कि ये चीफ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर पे छोड़ देना चाहिए, और लास्ट गवर्नर के ऊपर होना चाहिए कि उन्हें ये पोजीशन लेनी है कि नहीं। अब अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, तो पहला हमने बोमाई देखा, बोमाई वर्डिक्ट, बोमाई, बोमाई वर्डिक्ट। देन इसके अंदर जो बात हुई वो हुई आपकी सरकारिया कमीशन। तीसरा जो एग्जांपल है वो फर्स्ट एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट जो 1966 में आई थी। उसमें बात की है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स की, जिसके अंदर बोला गया है रिकमेंडेड स्ट्रांगली दैट वंस द गवर्नर कंप्लीट्स द टर्म ऑफ 5 years ही शैल नॉट बी मेड एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। मतलब एक बार अगर उनकी पोजीशन गवर्नर की सेट हो गई तो उनको शैल नॉट बी मेड एलिजिबल फॉर फर्दर, मतलब और अपॉइंटमेंट गवर्नर की तरह नहीं होना चाहिए। बट ये अभी नहीं चल रहा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो पहले किसी और स्टेट के गवर्नर थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया किसी और स्टेट में। सो दिस इज समथिंग दैट इज अगेंस्ट द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट। सरकारिया कमीशन विच was specifically on center state relations, the mandate and the canvas of administrative reforms was wider। मतलब जो एआरसी था उसका स्कोप जो था वो वाइड था, बट सरकारिया कमीशन का सिर्फ एक ही काम था, सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिफाइन करना। उसके बाद जो तीसरी रिपोर्ट इसके अंदर आर्टिकल में बताई है वो है नेशनल कमीशन की रिपोर्ट, और उन्होंने भी यही रिआइटरेट किया था जो सरकारिया कमीशन ने कहा था कि इट एनरिच द डिस्कोर्स बाय स्टिपुलेटिंग दैट देयर शुड बी अ टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, डिजायरेबली 6 months टू गिव असेंट और टू रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन of the president. If the bill is reserved for consideration of the president, there should be a time limit, desirably of 3 months, within which the president should take decision whether to accord his assent or to direct the governor to return it to the state legislature or to seek the advisory opinion of the Supreme Court. बेसिकली अगर कोई बिल पास नहीं होता और प्रेसिडेंट के अकॉर्ड्स एंड असेंट जो बात की गई है वो कहा इस पैराग्राफ में, और ये बात कहाँ कही गई थी, ये थी नेशनल कमीशन की बात की गई थी कि अगर प्रेसिडेंट अकॉर्ड नहीं देते हैं तो गवर्नर को बोला जाए कि वो रिटर्न करें स्टेट लेजिस्लेचर को अपना वो जो बिल है जो पास नहीं हुआ, फॉर रिकमेंडेशन एंड फॉर अमेंडमेंट्स। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कमीशन की बात हुई है वो फोर्थ जो सोर्स है इस आर्टिकल का, पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस 2007 की बात की गई है, जिसको हेड कर रहे थे इंडियन जस्टिस एम पुंछी, was constituted to inquire into the center state relations, taking into account the changes last year since Sarkaria Commission submitted report in 1988। 2007 में पुंछी कमीशन आई थी। उन्होंने कहा एक चेंजिंग टाइम एंड नीड्स की बात की थी उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस ऑफ गवर्नर्स बीइंग कॉल्ड बैक एट द बेल ऑफ regime चेंज समथिंग दैट डज नॉट बिफिट द सैल्यूटरी पोजीशन असाइन टू द गवर्नर। बेसिकली उन्होंने कहा कि गवर्नर जब सरकार चेंज होती है तो गवर्नर को भी रिकॉल कर लेते हैं ये लोग। उन्होंने बोला कि गवर्नर ऐसे चेंज नहीं होने चाहिए जब सेंटर में सरकार चेंज हो तब भी, बिकॉज गवर्नर की जो पोजीशन है दैट इज़ अ सैल्यूटरी पोजीशन
कमेंट्स में लिखना सैल्यूटरी पोजीशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैल्यूटरी पोजीशन। द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन बीपी सिंगल केस 2010। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो गई इस आर्टिकल में ही एज सोर्सेज। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, पुंछी कमीशन रिपोर्ट 2007 की बात हुई, एक जजमेंट बीपी सिंघल केस की बात हुई 2010 का जो है, उसके अंदर कहा चेंज इन पावर एट द सेंटर कैन नॉट बी द ग्राउंड्स टू रिकॉल गवर्नर एंड हेंस सच एक्शंस आर जुडिशियली रिव्यूएबल। मतलब अगर सेंटर पे सरकार चेंज होती है तो गवर्नर को आप ऐसे ही रिकॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम जुडिशियल रिव्यू में डाल के इसको रोक देंगे। गवर्नर्स टेन्योर ऑफ 5 years शैल ओनली बी स्पैरिंगली कट शॉर्ट। पुंछी कमीशन वेंट वन स्टेप अहेड, वो एक स्टेप और आगे चले गए। उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नर का जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होना चाहिए, सो दैट दे वुडेंट होल्ड ऑफिस अंडर द इनटैंजिबल प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली उन्होंने यही बात कही कि गवर्नमेंट का जो टर्म है वो अंडर 5 years तक का फिक्स कर दिया पुंछी कमीशन ने। बीपी सिंघल जो वर्डिक्ट था, उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर है उसको आप रिकॉल नहीं कर सकते अगर सेंटर में सरकार चेंज होती है। पुंछी कमीशन ने कहा कि 5 साल तक टेन्योर होना चाहिए फिक्स्ड गवर्नमेंट का, गवर्नर का, ताकि अगर सरकार कंटिन्यू करती भी रहे 5 साल के बाद तो गवर्नर को ज़रूर चेंज करना पड़े उन्हें। So basically it proposed an amendment to Article 156 so that there would be a procedure to remove the governor from the office. It also went तो इसमें रिमूवल ऑफ गवर्नर मतलब टेन्योर एंड रिमूवल की बात की गई पुंछी कमीशन रिपोर्ट में। रिकमेंडेड दैट गवर्नर शैल नॉट बी ओवरबर्डन विद द टास्क ऑफ रनिंग यूनिवर्सिटीज़। तो पहले जो सरकारी कमीशन ने बोला था कि स्टेट जो चीफ मिनिस्टर है, जो कंसर्न मिनिस्टर है, उनके हाथ में है। उन्होंने बोला कि गवर्नर को आप ओवरबर्डन नहीं कर सकते हैं टास्क से इसके कि यूनिवर्सिटी भी रन इनको ही करनी पड़े चांसलर बन के, बाय द वर्च्यू ऑफ देम बीइंग मेड चांसलर अंडर द स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट। तो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो गवर्नर होते हैं दे आर द चांसलर्स, बट आप गवर्नर को ओवरबर्डन नहीं कर सकते इस रोल के साथ। Conventions advocated by Sarkaria Commission coupled with functional safeguards recommended by Punchi Commission will go a long way rediscovering the constitutional equilibrium। तो सरकारिया कमीशन ने जो कन्वेंशंस बताए और जो पुंछी कमीशन ने फंक्शनल सेफगार्ड्स बताए, उनको अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो एक गवर्नर की पोस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी पोस्ट बन जाती है। कोर ऑफ डिसकंटेंट कहाँ है, वो ये है कि जो एपेक्स कोर्ट है उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। जैसे जजमेंट्स थे, जैसे एसआर बोमाई केस, रामेश्वर प्रसाद बिहार असेंबली डिसोल्यूशन केस ऑफ 2006 एंड नेबम रेबिया अरुणाचल असेंबली केस ऑफ 2016, by which the possibility of high gross handedness is either eliminated or reduced to the time taken for judicial review. Arbitrary imposition of president rule and dissolution of legislative assembly on the partition grounds are becoming the fables of yore। मतलब अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा कि आर्बिट्ररीली इम्पोज कर दिया जाए प्रेसिडेंट रूल, जैसे एस आर बोमाई के केस में हुआ तमिलनाडु डीएमके की सरकार, और गवर्नर ने रिमूव कर दी आफ्टर 1975। 3 फरवरी को इसकी डेट्स देखना एक बार कि 3 फरवरी आई बिलीव 1980s की बात होगी कुछ, जब जस्ट अ मिनट आई विल सर्च इट। येस, 3 फरवरी 1976 को प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया था तमिलनाडु में। तो एस आर बोमाई केस उसी से बना है। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अब नहीं हो सकती, गवर्नर की पास इतनी पावर्स नहीं है, अब खत्म हो गई हैं। हाइवर कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ओवर द नॉन क्रिटिकल बट आर पोटेंशियल टू अपसेट। तो बेसिकली अब जब गवर्नर के पास ये पावर ही खत्म हो गई कि वो आर्बिटरी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, तो अब आपको कुछ दिख रहा होगा कुछ गवर्नर्स ऐसे हैं जो सरकार के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। नॉन क्रिटिकल हैं ये चीज़ें बट हैव पोटेंशियल टू अपसेट हारमोनियस एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस एट द स्टेट लेवल। मतलब कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे जो बैलेंस मेंटेन होता है गवर्नर और स्टेट, जिसको हम कहते हैं गवर्नर और स्टेट मशीनरी के बीच में, वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर गवर्नर जो है वो अपने कमेंट्स या क्रिटिकल कमेंट्स करे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। व्हेन गवर्नर्स टर्न वोकल
In public, the local leaders who carry electoral mandate on their sleeve respond with equal vehemence, taking the relation to a new law. मतलब रिटालिएट फिर स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, देन एक्विजिशन शुरू हो जाती है, एंड फाइनली जो स्टेट मशीनरी है वो ही पूरी रुक जाती है। जैसे अगर आप दिल्ली के केस में भी देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट कहती कि हमने फाइल्स गवर्नर के पास भेजी हैं, गवर्नर कहते कि हमने रिवीजन के लिए इनको वापस भेजी, दिल्ली गवर्नमेंट कहती हमने फिर से वापस भेजी। तो इसमें कम से कम 1 to 2 years लग गए, सिर्फ फाइलें ही ट्रांसफ़र होती रही एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक। अगर हम दूसरे केस की बात करें जो गवर्नर ऑफ मेघालय हैं, अभी आपको उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। गवर्नर ऑफ मेघालय जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट के, एंड तो वो दे आर ओपनली क्रिटिकल अबाउट द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। दिस लीव्स अ बैड इम्प्रेशन ऑन द वोटर्स। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो अपने टेन्योर को अच्छा करने में लगी हुई है, बट जो गवर्नर है वो ही उनके अगेंस्ट चले गए हैं। So this is something that needs to be prevented. This is something that needs to be investigated also. कि why is the governor so against the government, और अगर against भी हैं तो there are methods and ways in which they can criticize. Openly criticism of government for something that personally the governor is not liking is something that should not be in practice. Last point है सरकारिया कमीशन that the governor appointee shall be a detached outsider and a person of eminence in some walks of life. फाइनली आपको ये ज़रूर नोट करना है, सरकारी कमीशन ने कहा था गवर्नर एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जिसने कुछ लाइफ में कर रखा हो, अच्छा कर रखा हो, पब्लिक के लिए कर रखा हो, एंड वो डिटैच्ड आउटसाइडर होना चाहिए। मतलब अगर कोई दिल्ली का है तो उन्हें ही दिल्ली का गवर्नर नहीं बनना चाहिए, बिकॉज उनके पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, दैट इज़ वाई। इसीलिए आप देखेंगे अगर बाकी सारे गवर्नर्स भी आप देखें, दे आर नॉट यूजुअली फ्रॉम दैट स्टेट ओनली। सो बहुत हद तक ये फॉलो किया जा रहा है, एंड दैट्स इट। आई मीन दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल टू अंडरस्टैंड द पोस्ट ऑफ गवर्नर एंड ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट इट। इसमें सोर्सेज जो हैं आपको याद रखने ज़रूरी हैं। सरकारिया कमीशन, फर्स्ट ARC, पुंछी कमीशन की रिपोर्ट, जो केसेस एंड वर्डिक्ट्स हैं जैसे सिंघल 2010 का जो वर्डिक्ट है, एंड और भी 2-3 वर्डिक्ट्स हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने ज़रूरी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड सेंटर स्टेट रिलेशंस एज वेल, and all the best for exams, and do share and subscribe the channel for more videos like this. Thank you everyone, thank you for keep supporting us.